Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 34 and date is 21st September 2020 and the topic is problems based on trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree. In our last video we discussed the table related to different values 0 degree, 30, 45, 60 and 90. And today we will discuss how to evaluate a given function by using these values, especially 30, 45 and 60. So first of all, we will recall the last वर्कशीट्स टॉपिक जो हमारा था लास्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला. तो साइन ए यानी साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2, कॉस 30 √3/2, cos 45 is 1/√2 and cos 60 is it is equal to 1/2. Tan A is that is 30. Tan 30 degrees 1/√3. Tan 45 is 1 and tan 60 is √3. So these are the values of 30, 45 and 60 for different trigonometric ratios. Now using these values, we will evaluate our example 1, that is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. Sin 60 degree is equal to √3/2, √3/2 and cos 30 is also √3/2 and then sin 30 is 1/2 and cos 60 is 1/2. So using BOD mass means bracket off, then division, multiplication, addition and then subtraction. तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट. तो √3 into √3 is 3, 2 2s are 4 plus 1/4 that is 4/4 and answer is 1. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1. नाउ एग्जाम्पल 2. इन ट्राइंगल ABC angle B is 90 degree means this angle, AB is 5 and ACB is 30 degree. AB and this means this side and ACB means this angle. Determine the length of the sides BC and AC. BC means this and AC means this. अब हमारे पास एंगल है 30 डिग्री. साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज अवर परपेंडिकुलर. दिस वन इज फॉर बेस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर इट इज हाइपोटेनस. फॉर AB relation is P and B. P and B, that is पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. दिस इज साइन कॉस टेन. तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले ये मंत्र तो हमेशा लिख लें जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख सकें किस में कौन सा रिलेशन है. तो P and B का रिलेशन, P and B इट इज़ डिफाइंड बाय 10. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू 10C. AB की वैल्यू 5 अपॉन BC इज 1030. 1030 वैल्यू इज 1/√3. So we get BC is equal to 5√3 centimeters. Then AC, P and H. तो P and H की वैल्यू को कौन डिफाइन कर रहा है? Which function is defining P and H? It is sin. तो sin C is equal to AB upon AC. तो sin 30 is equal to AB upon AC. AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? AB की वैल्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 और sin 30 है हमारा 1/2. Solving this we get AC is equal to 10 centimeter. तो ये हो गया एग्जाम्पल 2. नाउ फॉर एग्जाम्पल 3. इफ tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1/√3, find A and B. अब यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ यानी वैल्यू दी हुई है, तो हमें वैल्यू से एंगल पे जाना है. कैसे? यहाँ पर 10 दिया है ना, तो हमें ये सर्च करना है कि √3 10 में किस डिग्री पर यानी किस वैल्यू पर √3 आता है. तो tan A plus B is equal to tan 60 because tan 60 is √3. Therefore 10 से 10 cancel, we get A plus B is equal to 60 degree. Similarly 1/√3 कब मिलता है हमें tan में? tan 30 पे, यानी tan A minus B is equal to tan 30 degree. Again 10 and 10 cancel, we get A minus B is equal to 30 degree. And using elimination method, we get A is equal to 45 degree and B is equal to 15 degree. How? A plus B is 60 degree. A minus B is 30 degree. Adding these equation we get 2A is equal to 90 degree
A is 45 degree and B is 60 minus 45, that is 15 degree. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3. नाउ एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 में हमें क्या दिया है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45. तो यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं. साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1, कोसिकेंट 60 2/√3, secant 30 2/√3 plus cos 60 1/2 and cot 45 is 1. Again using BODMAS, first of all we will add these two. We get 3/2 minus 2/√3 and here we get 2/√3 plus 3/2. Now take the LCM. 2√3 ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 3√3 minus 4/2√3. सिमिलरली डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3/2√3. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√3 और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके उसके डिनोमिनेटर को हमने बना दिया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बना दिया डिनोमिनेटर. ये और ये कैंसिल. देन 3√3 माइनस 4 और इसे भी हम 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं. ये हमने लिख लिया. नाउ यूजिंग रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर विच वी हैव लर्नड इन क्लास 9th, हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से बट साइन इज अपोजिट. न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म्स आ गई. अब उसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट द आंसर 43 माइनस 24√3/11. दिस इज द आंसर. नाउ एग्जाम्पल 5. Choose the correct option and justify your choice. 2 tan 30 degree upon 1 minus tan square 30 degree. तो हमें चूज़ करना है इन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन सही है. तो इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. 2 tan 30 मीन्स 2 इंटू 1/√3. 1 माइनस tan square 30 मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 3 मीन्स 2 इंटू 1/√3 तो हमारे पास है ऊपर. 1 माइनस tan square 30 मीन्स 1 माइनस √3 होल स्क्वायर. तो वी गेट 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3. उसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 2/√3 इंटू 3/2 और 2 से 2 कैंसिल. वी गेट 3/√3. ये हमें मिला. अब 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर इज √3. √3 से √3 कैंसिल मीन्स √3 बच गया. √3 किस में मिलता है हमें, वो मिलता है हमें टेबल में जब हम tan 60 को देखते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज tan 60 डिग्री. क्लियर. अब चलते हैं आगे. नाउ दीज आर द क्वेश्चन फॉर अस. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 फाइंड a प्लस b. तो सिमिलर वे में जैसे हमने tan के लिए सॉल्व किया, हम यहाँ अब साइन के लिए सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. हम सेम उसी मेथड से टेबल में सर्च करेंगे कि हमें साइन की वैल्यू कहाँ मिलेगी 1/2. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वेयर साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस b इट इज़ ऑल्सो 1/2. तो साइन a माइनस b, साइन में a 1/2 की वैल्यू कब आती है हमारी, ये मिलती है हमें साइन 30 डिग्री पे. तो साइन कैंसिल, वी गेट a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री. दिस इज अवर इक्वेशन 1. नाउ कॉस a प्लस b. अब कॉस में 1/2 हमें कब मिलता है, कॉस 60 डिग्री पे. अगेन कॉस गेट्स कैंसिल. a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज अवर इक्वेशन 2. तो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड वी गेट a माइनस b इज 30 डिग्री, a plus b is 60 degree. Adding these two equations we get 2a is equal to 90 degree, a is equal to 45 degree. अब a हमें 45 मिल गया, then a plus b is 60 degree. So b is equal to 60 minus a, that is 60 minus 45 degree, it is 15 degree. तो a की वैल्यू मिल गई 45 और b की वैल्यू मिल गई 50. तो दिस इज द first question. Now second question,
सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट cos 45 अपॉन secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। यानी अब हमें यहाँ पर 45, 30 एंड कोसिकेंट 30 जो है इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, कौन सा नंबर है हमारा? सॉल्यूशन 2। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो वैल्यूज़ पर पुट कर देते हैं। cos 45 इज़ 1/√2, दिस वन इज़ 2/√3 एंड दिस वन इज़ 2/1। तो ये तो 1/√2 ही रहेगा। यहाँ हम नीचे ले लेते हैं एलसीएम, ये √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ, तो वी गेट 2 + 2√3। नाउ 1/√2, अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, √3/2 + 2√3। तो ये मिल गया हमें। अब ये हमारे पास √3 और √2 को मल्टीप्लाई कर दें हम इस पूरे ब्रैकेट से, तो हमें मिला 2√2 + 2√6। अब √2 में इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो √2 + √6 हमारे पास बच गया। रूट हमें डिनोमिनेटर में छोड़ना नहीं है, देन वी विल रैशनलाइज इट। तो √3/2 √2 + √6, तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर हमें मिला √6 - √18 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब ये a + b a - b है, यानी a² - b²। तो दिस इज √6 - √18 अपॉन 2 इंटू 2 - 6, √6 - √18 अपॉन 2 इंटू -4, दैट इज √6 - √18 अपॉन -8। माइनस का साइन भी हम ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। √18 हो गया पॉजिटिव और √6 जो है वो हो गया नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में रह गया 8। आगे चाहे तो हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3√2 √6 अपॉन 8। हो गया सॉल्यूशन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। यानी सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 2 इंटू 1² प्लस cos² 30 मीन्स √3/2² माइनस sin² 60 √3/2²। तो 2 + 3/4 माइनस 3/4, ये और ये कैंसिल, वी गेट 2 इज द आंसर। तो ये भी सॉल्व हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। यानी पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन 4। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 + tan² 30 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू 1/√3 अपॉन क्या होगा यहाँ पर अब 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3, 1 + 1/3 यानी 2/√3, और ये हो गया 3 + 1/3 यानी 2/√3 + 4/3। अब चेंज करें 2/√3 और ये बन गया 3/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमें मिला 3/2√3। अब ये तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे 2√3 है, √3 से √3 कैंसिल, वी गेट √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? या तो cos 30 होगा या sin 60 डिग्री। तो दिस इज sin 60 डिग्री, हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।